हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, इधर देखिए भाई, लास्ट क्लास में अपना चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। And we have studied that microsporangia is surrounded by four wall layer. The outermost is known as, बोलते जाओ भाई, outermost is known as epidermis. The second layer is known as endothecium. Then outside, inside to the endothecium, middle layer. And this middle layer is involved in the storage of food material. The first three layers are involved in the protection and also help in dehiscence of anther. Dehiscence of anther mainly occurs due to endothecium. Endothecium layer is responsible for the dehiscence of anther, but with the help of epidermis, endothecium and middle layer. Middle layer helps in dehiscence of anther by degeneration. जब तक मिडिल लेयर डिजेनरेट नहीं करेगा, dehiscence नहीं होगा. Then inside to this, the fourth layer, and this fourth layer is tapetum. This layer is having the dense cytoplasm and usually have more than one nucleus. This is the tapetum layer. And tapetum, the cell of tapetums are having the dense cytoplasm, also usually have more than one nucleus, and usually they are polyploid. And this polyploid condition in tapetum cell occur due to the endomitosis. Endomitosis means chromosome division occur, but nucleus and cell division does not occur. Endomitosis, in which centromere division occur, chromosome doubling occur, but nuclear division and cell division does not occur. So number of chromosome become double. नॉर्मल से इनमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ते चले जाते हैं और वो प्रोसेस कहलाता है एंडोमाइटोसिस. यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, means multinucleate condition, and this multinucleate condition, it occurs due to the free nuclear division. In free nuclear division, nuclear division occur, but cell division does not takes place. Here, in case of free nuclear division, karyokinesis is not followed by cytokinesis. Karyokinesis तो होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. और जब कैरियोकाइनेसिस हो जाए और साइटोकाइनेसिस ना हो, तो सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ जाते हैं. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक से ज्यादा होने का रीजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और एफएनडी, और पॉलीप्लॉइड सेल बनने का रीजन एंडोमाइटोसिस. ठीक है भाई. एंड दिस टेपेटम
This tapetum provide nutrition to the developing microspore and developing pollen grain. यहां अगर हम बात करें tapetum के फंक्शन की, tapetum, if we'll talk about the function of tapetum, then first function of tapetum that it provide nutrition to developing microspore and pollen grains. जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन होते हैं उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. कैसे करेगा, इधर देखो. टेपेटम जो है मिडिल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करेगा. इट एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर एंड रिलीज इट टुवर्ड्स द इनर साइड. अंदर की तरफ ये न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता जाता है. यहां पर क्या होता है कि अंदर जो है ये जो टेपेटम के सेल होते हैं, ये टेपेटम के सेल ग्रेजुअली डीजनरेट होते जाते हैं. जैसे जैसे माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनते जाते हैं वैसे टेपेटम के सेल डीजनरेट करते जाते हैं और इनका साइटोप्लाज्म या इनके जो सेल के अंदर जो मटेरियल है दैट इज रिलीज्ड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया. यहां से अगर सेल वॉल डीजनरेट करेगा तो ये वाला मटेरियल इस साइड आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा. सो दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. पीएमसी को भी कर सकते हैं, एमएमसी को भी कर सकते हैं. सेकेंड, दे आर इन्वॉल्व इन द secretion of enzymes and hormones. If we'll talk about the microspore tetrad, there is a structure formed by the meiosis in microspore mother cell known as microspore tetrad, also known as pollen tetrad. And this microspore tetrad and pollen tetrad that is surrounded by a layer known as callus. Callus layer होता है बेटा, और उस callus layer को डिग्रेड करने का काम कैलेज एंजाइम करता है और उस कैलेज को सिक्रीट करने का काम टेपेटम करता है. कैलेज एंजाइम is secreted by the tapetum cells. Just like this, it also secretes the hormone, mostly auxins. मोस्टली ये ऑक्सिन्स का सिक्रीशन भी करेगा. देन नेक्स्ट थिंग इज दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन. दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन. एंड स्पोरोपोलेनिन, दिस स्पोरोपोलेनिन इज एक्चुअली द पॉलीमर ऑफ carotenoid. Carotenoids is actually the complex lipid. Carotenoids जो होते हैं ना ये केमिकली कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं और इन कॉम्प्लेक्स लिपिड के पॉलीमराइजेशन से स्पोरोपोलेनिन बनता है. एंड दिस स्पोरोपोलेनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट बायोकेमिकल. मतलब नेचर में अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल ओरिजिन्स के केमिकल में इससे रेजिस्टेंट कोई भी केमिकल नहीं है. लिविंग वर्ल्ड में इससे रेजिस्टेंट कोई केमिकल नहीं है बेटा. और ये एक ऐसा केमिकल है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. मींस टिल नाउ देयर इज नो एंजाइम डिस्कवर्ड which can degrade the sporopollenin. स्पोरोपोलेनिन का एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन या बायोडिग्रेडेशन नहीं होता. ठीक है भाई. इस पर दैट इज रेजिस्टेंट टू प्रेशर. प्रेशर का भी असर नहीं होगा, टेम्परेचर उसका भी असर नहीं होता, एसिड बेस किसी का कोई असर नहीं. ठीक है भाई.
बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, हाई प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, हाई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लो पीएच हाई पीएच का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब स्पोरोपोलेनिन का डिग्रेडेशन नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई द पोलन ग्रेन, याद रखना, स्पोरोपोलेनिन फॉर्म द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का आउटर वॉल बनाता है, एंड दैट्स व्हाई पोलन ग्रेन्स आर इजीली फॉसिलाइज्ड। याद रखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन्स आर इजीली फॉसिलाइज्ड। और अगर किसी एरिया में फॉसिल्स पोलन मिल जाए ना, कि कहीं पर अपने को फॉसिल पोलन मिल गए, लगातार मिलते ही जा रहे मिलते ही जा रहे मिलते ही जा रहे, तो मजा आ गया। मजा क्यों आ गया? कि कहीं ना कहीं उस पूरे एरिया में फॉसिल्स फ्यूल मिलेगा, या तो पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलेगा या कॉल डिपोजिशन मिलेगा। क्योंकि फॉसिल्स पोलन मिलने का मतलब है कि कभी ना कभी पास्ट में, बहुत हजारों लाखों साल पहले, वहां पर एंजियोस्पर्म रहे होंगे जो कंटिन्यूअस चेंजेस के साथ अर्थ की लोअर लेवल में चले गए, प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो या तो कॉल में कन्वर्ट हो गए या पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है बात? बोलो भाई। सो हियर स्पोरोपोलेनिन, due to the presence of sporopollenin, pollen grains are easily fossilized. Now, this is also involved in the formation of Ubist body. This is also involved in the formation of Ubist body. Actually, what happened here? This is the tapetum or the tapetum cell. और ये जो tapetum cell है, in this tapetum cell, small spherical structures are formed in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में spherical structures बनते हैं, and these spherical structures, they are known as प्रोयूबिस्ट बॉडी। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बने, इनका नाम होता है प्रोयूबिस्ट बॉडी। अब इसके बाद ये टेपेटम के सेल इनके चारों तरफ डिपॉजिट करते हैं स्पोरोपोलेनिन। इनके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होगा और उसके बाद ये प्रोयूबिस्ट बॉडी कन्वर्ट हो जाएंगे यूबिस्ट बॉडी में, एंड दिस यूबिस्ट बॉडी फॉर्म द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। यूबिस्ट बॉडी का मेजर कंपोनेंट स्पोरोपोलेनिन। यूबिस्ट बॉडी का मेजर कंपोनेंट स्पोरोपोलेनिन, और इसीलिए हम बोल देते हैं कि पोलन एक्साइन आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बने, इनको बोला हमने प्रोयूबिस्ट बॉडी। इनके चारों तरफ डिपॉजिट हुआ स्पोरोपोलेनिन, बन गया यूबिस्ट बॉडी, और यही यूबिस्ट बॉडी बनाएगा एक्साइन। और कैसे बनाएगा? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूबिस्ट बॉडी, द इनर वॉल ऑफ टेपेटम गेट डीजनरेट। जब यूबिस्ट बॉडी बन गया साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में यूबिस्ट बॉडी बनने के बाद टेपेटम का सेल का इनर वॉल डीजनरेट कर जाएगा, एंड दिस यूबिस्ट बॉडी रिलीज इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। और अंदर की तरफ कौन? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और डेवलपिंग पोलन। ठीक है बेटा, बात समझ में आई बेटा? ये now fifth function, that is the secretion of pollen kit. And pollen kit, this is also made up of carotenoid or lipid, and this pollen kit that is sticky in nature. ये जो pollen kit होता है, this pollen kit is actually the sticky in nature,
and due to the presence of pollen kit, the pollen of insect pollinated plant become sticky. ये जो pollen kit होता है, this is present on insect pollinated plant pollens. ठीक है भाई, ये जो होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं उनके पोलन के चारों तरफ पोलन किट का डिपोजिशन हो जाता है. स्टिकी नेचर है तो पोलन ग्रेन कैसा हो जाएगा? स्टिकी और नॉन स्टिकी? हाँ, पोलन ग्रेन स्टिकी हो जाएगा. रीजन है कि अगर बाई चांस इंसेक्ट आए तो और इंसेक्ट की बॉडी के पोलन टच कर गया तो चिपक जाना चाहिए. इंसेक्ट मेहनत नहीं करेगा पोलन चिपकाने के लिए. याद रखो, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए नहीं आता, इंसेक्ट तो रिवार्ड्स के लिए आता है. और उन रिवार्ड्स के चक्कर में पॉलिनेशन हो जाता है. ठीक है भाई, पॉलिनेशन करने के लिए नहीं आया है वो तो क्या रिश्वत लेने आया है. अब रिश्वत लेने आया है तो साथ में काम भी हो जाता है, पॉलिनेशन भी हो जाता है. प्रेजेंट ऑन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स पोलन. ठीक है भाई. अनदर थिंग, this is yellow in color, so it provide yellow color to the pollen grain and it also protect the pollen from the ultraviolet radiation. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम भी पोलन किट करेगा. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? बोलिए बेटा. यूबिस बॉडी एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा. ये एक टेपेटम सेल है, ये सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया. ठीक है बेटा, ये तो हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया न्यूक्लियस. अब क्या होगा? इन द साइटोप्लाज्म spherical structures are formed and these spherical structures are known as proubised body. और जब इन प्रोयूबिश बॉडी के चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन डिपॉजिट हो जाएगा तो इन्हीं प्रोयूबिश बॉडी को हम बोल देंगे यूबिस्ट बॉडी, और ये यूबिस्ट बॉडी बना लेगा एक्साइन. ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा. हाँ, सबसे बाहर क्या बेटा? कैलेज एक एंजाइम होता है जो कैलोस को डिसॉल्व करता है, और ऑक्सिन जो होता है डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है. और बोलिए बेटा, चलें आगे. हाँ, ये एक केमिकल सिक्रेट करेगा मोस्टली इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन में, जो एक्साइन के बाहर आएगा, येलो कलर प्रोवाइड करेगा, स्टिकीनेस प्रोवाइड करेगा. मेनली स्टिकीनेस के लिए आता है ये, क्योंकि पोलन स्टिकी होगा तो इजीली स्टिक कर जाएगा और वो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा. चलिए, अब इसके बाद आते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ. हाँ, एक बात और, इसके अंदर की तरफ ये पूरा का पूरा दिस इज homogeneous mass of cell and homogeneous mass of cell present in the young anther. This is known as sporogenous cells, and each sporogenous cell can work as a microspore mother cell or can be known as pollen mother cell. All the cell of sporogenous tissue, all the cells of sporogenous tissue can produce the microspore or pollen grain. So each cell of sporogenous tissue are potentially pollen mother cell. कैपेसिटी है, बनाएगा या नहीं बनाएगा वो बात दूसरी है, इसीलिए बोला गया पोटेंशियल पोलन मदर सेल. अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नेक्स्ट थिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ एंथर.
and initially the anther is present as a small spherical structure. इस तरह से होगा, and this structure is surrounded by epidermal cell. ये epidermis, and inside this large number of meristematic cells are present. इस पूरे के अंदर बहुत सारे meristematic cell होंगे. Meristematic cell means the cell with cell division capability. ये सारे के सारे सेल मैरिस्टमेटिक है, मतलब ये सारे सेल डिवाइड कर सकते हैं. और एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला लेयर, स्टेम में एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला लेयर हाइपोडर्मिस, और इसीलिए इन सेल्स को हाइपोडर्मल सेल भी कहा जाता है. These are hypodermal cell. Now division and differentiation occur. अब ये जो होगा इसका साइज बढ़ने लगेगा. इस तरह से स्ट्रक्चर बना. यहां पर ये एपिडर्मिस, and first of all here वैस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन अकर. इसके सेंटर में यहां पर वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगेगा. और एंथर के वैस्कुलर टिश्यू किसमें? हाँ भाई, वैस्कुलर टिश्यू ऑफ एंथर आर प्रेजेंट इन. तो अब कनेक्टिव का डिफरेंशिएशन होने लगेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर डिफरेंशिएटिंग vascular tissue. Differentiating vascular tissue है, and here what happen? Along with this differentiating vascular tissue, few cell each at each corner enlarge in size. हर कॉर्नर पर जो सेल होंगे ये सेल साइज में एनलार्ज हो जाएंगे. ठीक है बेटा. तो एक एंथर के अंदर कई सारे सेल एनलार्ज हो गए, एंड ईच सेल इज नोन एज आर्की स्पोरियल सेल. नाउ these cell works as archisporial cell. और बाकी पूरे के अंदर यहां पर ये सेल now what happen in this archisporial cell? पेरिक्लाइनल डिवीजन occur. ये जो आर्किस्पोरियल सेल होता है इस सेल में अब होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन. और जब भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे एक सेल अंदर की तरफ बनेगी, एक सेल बाहर की तरफ बनेगी. तो यहां भी अब क्या होगा, ये जो आर्किस्पोरियल सेल है जब इसमें डिवीजन होंगे तो कुछ सेल बाहर और कुछ सेल अंदर बनेगी. यहां पर ये हो गया एपिडर्मिस. अगर आप यहां पर एक बात देखो तो एपिडर्मिस जो है स्टार्ट से ही एंथरवेयर है. यहां भी हमने एपिडर्मिस बनाया है. तो जब ये एंथर फॉर्म होने लगता है तब से ही एपिडर्मिस इसमें प्रेजेंट होता है. लेकिन अभी इसमें ना एंडोथीशियम है, ना मिडिल लेयर है, और ना टेपिटम है. अब क्या हुआ, इस आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन हुए, एंड दिस डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल.
एक ये डॉटर सेल हो गया, एक ये हो गया। ये कनेक्टिव। बाहर की तरफ जो सेल बना, जो एपिडर्मिस की तरफ सेल बना, दिस सेल इज नोन एज प्राइमरी पैराइटल सेल। What is the ploidy of primary parietal cell? N or 2N? हाँ भाई, what is the ploidy of primary parietal cell? N or 2N? पक्का 2N? 2N। और जो अंदर की तरफ सेल बना, this cell is known as primary sporogenous cell. This is known as primary sporogenous cell. Now, in this primary parietal cell, periclinal division occur. और जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, देन इट फॉर्म द 3 to 5 लेयर्स। उसके बाद डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ये बना लेगा एंडोथीशियम, ये बना लेगा मिडिल लेयर, और ये बना लेगा टेपेटम। देख लो आप, अगर हम ये माने कि मिडिल लेयर सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, तो एंडोथीशियम कितने लेयर? 1 और मैनी 1 मिडिल लेयर, और टेपेटम 3 लेयर। अगर मिडिल लेयर को 2 मान लें तो 4 हो जाएगा, और 3 मान लें तो 5 हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो मिडिल लेयर में हमने लिखा था 1 to 3 लेयर थिक, लिखा था, बन गई लेयर। एंडोथीशियम आर कंसिडर्ड, इधर देखना बेटा, एक छोटी सी बात आएगी यहां पर। एंडोथीशियम इज कंसिडर्ड एज आउटर मोस्ट पेराइटल लेयर। क्यों? एपिडर्मिस को क्यों नहीं बोला? याद रखो, जो पेराइटल सेल से डेवलप होगा वही पेराइटल लेयर कहलाएगा। और एपिडर्मिस इज नॉट डेवलप फ्रॉम द पेराइटल सेल, एंड दैट्स व्हाई एपिडर्मिस इज नॉट द पेराइटल लेयर। Then this primary sporogenous cell, this primary sporogenous cell show the mitotic division, and by the mitosis it produces large number of sporogenous cells, और cells का जो ग्रुप होता है उसको बोल देते हैं टिश्यू। So large number of sporogenous cell are produced by the mitosis in primary sporogenous cell। क्लियर है बात? और ये हर sporogenous cell, each sporogenous cell have capability to produce microspore or pollen, so it is known as microspore mother cell, or can be known as pollen mother cell। तो इधर देखो बेटा, अगर आप देखो तो एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और हर माइक्रोस्पोरेंजिया एपिडर्मिस ऑलरेडी है, एंडोथीशियम आ गया, मिडिल लेयर आ गया, टेपेटम आ गया, और टेपेटम के अंदर होमोजीनस मास ऑफ सेल, जिसको नाम क्या दिया था? बन गया पूरा एंथर। बोलो। सो this is the development of anther, and inside the anther large number of sporogenous cell or the microspore mother cell are present। इन सारे सेल का प्लॉइडी लेवल n या 2n। हाँ भाई, बेटा यूबेस्ट बॉडी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। यूबेस्ट बॉडी एक स्ट्रक्चर का नाम है, कैरोटिनॉइड, एक तरह के कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन के बाद 2 सेल बनते हैं, प्राइमरी पेराइटल लेयर एंड द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। एंडोथीशियम कैसे अरेंज होगा? एपिडर्मिस के नीचे की तरफ,
एपिडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ एंडोथीशियम लेयर आएगा बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब अपने पास खूब सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल है, और ये सेल डिवाइड होंगे बाय मियोटिक, बाय द मियोसिस, एंड व्हेनेवर मियोसिस अकर, वन मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस 4 सेल्स। और ये सेल क्या होंगे, एन या 2n, और इन सेल को बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर, एंड द प्रोसेस इज नॉन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट इज द microsporogenesis. And if we'll talk about the microsporogenesis is the formation of microspore from microspore mother cell. This is microspore mother cell. It show meiosis, and when it divide meiotically, it produce the microspore tetrad, sometime also known as pollen tetrad. And all the 4 microspore of a tetrad, all the 4 microspore of a tetrad are attached with callus. याद रखना बेटा, ये जो होते हैं इनके चारों के बीच में और इनके चारों तरफ a layer is present, and this layer is known as callus layer. ये कैलोस, और इसी कैलोस को डिग्रेड करेगा एंजाइम रिलीज्ड बाय टैपेटम कैलेज. व्हाट इज द प्लोइडी लेवल ऑफ माइक्रोस्पोर, n और 2n? हाँ, n. और n को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? हाँ भाई, n इज स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट? हाँ, गैमेटोफाइट. So microspore is the first cell of male gametophyte. मेल चल रहा है बेटा, और मेल में गैमेटोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल है, तो मेल गैमेटोफाइट. Microspore is the first cell of male gametophyte. तो माइक्रोस्पोर जो होता है गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट. एनसीईआरटी में माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन को एक ही माना गया है. थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब माइक्रोस्पोर के चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन हो जाता है ना, जब एक्साइन बन जाता है, तब उसी स्ट्रक्चर को हम पोलन ग्रेन बोल देते हैं. ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में सिनोनिमस माना है, अपन भी सिनोनिमस मानकर चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है बेटा, यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? प्लॉइडी लेवल समझ में आया कि माइक्रोस्पोर एन क्यों हुआ? ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की. याद रखना, एक मियोसिस से कितने पोलन बने, कितने माइक्रोस्पोर बने? हाँ पक्का, 4. टेट्राड बनाए ना, तो 4 बने. अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, एंड इफ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, साइज 25 to 50 माइक्रोमीटर. अगर यहां हम पोलन ग्रेन के साइज की बात करें, तो इनका साइज 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि इसी रेंज में हो, इससे ज्यादा कम भी पॉसिबल है. अगर हम यहां देखें तो ईच पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय 2 वॉल लेयर. देयर आर 2 वॉल्स. द इनर वॉल इज नॉन एज intine, and this intine layer is thin as well as flexible, and this intine is made up of pectin and cellulose. अगर आप देखें तो in pollen grain at the time of pollination 2 cells are present.
पॉलिनेशन के टाइम पर पोलन ग्रेन में दो सेल होते हैं, एक जीसी जनरेटिव सेल और दूसरा वीसी वेजिटेटिव सेल। बड़ा कौन? हाँ भाई, बड़ा कौन? जनरेटिव या वेजिटेटिव? वेजिटेटिव। और जो वेजिटेटिव सेल होता है उसका सेल वॉल इंटाइन। याद रखो बेटा, ये जो इंटाइन है ना, दैट इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ वेजिटेटिव सेल, एंड this intine comes out as a pollen tube during the pollen germination। जो pollen tube बनता है ना, वो pollen tube intine ही बनाता है। जो pollen tube बनकर बाहर आया ना बेटा, वो pollen tube intine है। Then outside to this another layer is present, and this layer is known as exine, and on exine sporopollenin get deposited। ये sporopollenin this is the exine, and exine this is made up of sporopollenin। This is thick and rigid or thick and hard layer। ठीक है बेटा। अब अगर आप इस डायग्राम को देखो तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर एक्साइन नहीं है। There are certain places where exine is not present, or if exine present then sporopollenin deposition does not occur। या तो sporopollenin होगा या तो exine होगा ही नहीं, और अगर बाय चांस exine हुआ तो sporopollenin नहीं होगा, and these regions are known as germ pore। The region where either exine is not present or sporopollenin is not present, that are known as germ pore, and through these germ pore pollen tube comes out। ये जो इंटाइन pollen tube की फॉर्म में बाहर आएगा, वो इंटाइन इन्हीं जर्म पोर के थ्रू बाहर आएगा। अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर जर्म पोर इन मोनोकोट प्लांट वन जर्म पोर इज प्रेजेंट, और वन जर्म पोर है तो इसको बोल देंगे हम मोनोकॉल्पेट। अगर हम डाइकोट की बात करें तो इन डाइकोट 3 जर्म पोर आर प्रेजेंट, तो इसको हम बोल देंगे ट्राई कॉल्पेट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पोलन ग्रेन है, एक प्लांट का पोलन ग्रेन है और उसमें 3 जर्म पोर है, क्या आप मुझे बता सकते हो मोनोकोट होगा या डाइकोट होगा? हाँ, मीन्स यू हैव आइडेंटिफाइड द प्लांट, एंड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन is a step in taxonomy। Means the pollen grain is also used, pollen grain structure, ornamentation of pollen grain, type and position of germ pore, that can be used as a taxonomic character, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे। तो यहां हम देखें तो यहां पर that is number and type of germ pore, ornamentation or pattern of sporopollenin deposition and structure of pollen can be used
as taxonomic character. Taxonomic character means they can be used in classification. क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो, ऑर्नामेंटेशन का मतलब है पैटर्न ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, कि स्पोरोपोलेनिन का जो डिपोजिशन है वो किस तरह का पैटर्न बना रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑर्नामेंटेशन। ठीक है भाई? सो दिस इज एक्साइन, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, अगर ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन है, if it is insect pollinated pollen, then outside to this another chemical is present, and this chemical is pollen kit. ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई। बोलिए भाई, इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? चलें आगे बेटा। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन की वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है सो दैट इट कैन बी इजीली फॉसिलाइज्ड। और फॉसिल्स पोलन अगर किसी एरिया में मिल गए तो उस एडजेसेंट एरिया में कहीं ना कहीं या तो पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलेगा या फिर कॉल डिपॉजिट मिलेगा। ठीक है? हाँ जी, क्या? बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है और होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या स्पोरोपोलेनिन, क्या एक्साइन डिग्रेड होगा? क्या एक्साइन डिग्रेड होगा? नहीं होगा। तो एक्साइन रहेगा और वही फॉसिलाइज्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। ऑब्वियसली यस, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि जो जर्मपोर है यहां से तो डिग्रेडेशन होगा, केमिकल तो अंदर जा ही सकता है यहां से, और होता भी है। लेकिन एक्साइन जो है वो तो सरवाइव करेगा, वो तो प्रेजेंट रहेगा, और जब एक्साइन प्रेजेंट रहेगा तो वही फॉसिलाइज्ड फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटा? हाँ भाई। अब अगर हम देखें कुछ स्पेशल पॉइंट, और यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ट्रांसलेटर apparatus. Translator apparatus, this structure is present in Calotropis and the member of Asclepidaceae family. एक फैमिली होती है एस्क्लेपिडेसी जिसमें कैलोट्रोपिस आता है हमारा, मिल्कवीड बोलते हैं, आंख या मदार, जिसको कहीं से भी आप ब्रेक करो मिल्की फ्लूइड बाहर निकलता है। तो यहां पर कैलोट्रोपिस में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है फॉर द पॉलिनेशन, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज ट्रांसलेटर एपरेटस। हियर व्हाट हैपन, अगर हम यहां देखें दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज पॉलिनिया, और द पॉलिनियम, एक एंथर में कितने एंथर लोब? Number of anther lobe in one anther? 2. In one anther, 2 anther lobe are present. In Calotropis or Asclepidaceae family, what happen? All the pollens of one anther lobe, एक anther lobe के सारे pollen, they comes and form a basket-like structure, and this pollen-filled basket-like structure that are known as pollinium, और इसी का plural form होता है पॉलिनिया। ठीक है बेटा? एक एंथर लोब से एक पॉलिनियम बनेगा, तो एक एंथर में दो एंथर लोब होते हैं। सो हियर 2 पोलिनिया आर फॉर्म्ड, 2 पोलिनिया आर फॉर्म्ड, क्योंकि एक एंथर में 2 एंथर लोब, एक एंथर लोब से एक पॉलिनियम बना, तो पूरे के पूरे एंथर से 2 एंथर लोब, एंड दीज 2 anther lobe are connected by a rope like structure known as cortical. इसके ऊपर
an hexagonal disc-like structure is present, and this disc-like structure is known as corpusculum, and corpusculum is sticky in nature. याद रखना ये कार्पस्क्यूलम हुआ, और ये कार्पस्क्यूलम जो होता है स्टिकी नेचर का होता है. इन कैलोट्रोपिस this complete structure is known as translator apparatus, and this is responsible for the pollination. याद रखना कैलोट्रोपिस के साथ प्रॉब्लम होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में अ फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट. दोनों के बीच में बैरियर आ जाता है, और उस बैरियर को हम बोलते हैं गाइनोस्टेजियम. ठीक है भाई. तो यहां पर उस बैरियर की वजह से pollen cannot reach on the stigma. जब इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट गाइनोस्टेजियम पर बैठता है, somehow it touch the either corpusculum or cortical. कार्पस्क्यूलम और कॉर्टिकल को टच करता है, और जैसे ही वो टच करेगा, these structure attach on the body of insect. अब ये इंसेक्ट उड़कर दूसरे फ्लावर पर जाएगा. ऐसा तो ही नहीं कि एक इंसेक्ट किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर से ही नेक्टर को सक करेगा. तो नेक्टर सक करने के लिए जब ये दूसरे फ्लावर पर जाएगा, तो वहां पर फीमेल के कांटेक्ट में आएगा, और फीमेल पार्ट के कांटेक्ट में आएगा, तो ये पूरा का पूरा एपरेटस वहां पर रिलीज हो जाएगा. सो दिस इज फॉर द पॉलिनेशन इन कैलोट्रोपिस और एस्क्लेपिडेसी. इतना सा याद रखना है कि पॉलिनिया एंड ट्रांसलेटर एपरेटस इज फॉर्म्ड इन कैलोट्रोपिस. Second, that is aeroallergen, and aeroallergen, these are pollens of some air pollinated plants. जो एयर pollinated plants होते हैं, the air pollinated plant release the pollen grain in air, और बाई चांस ये एयर हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं, तो कुछ इंडिविजुअल्स में ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो कर देते हैं, और उसी को हम बोलते हैं एलर्जी. एयर में पार्टिकल्स की वजह से आया, इसलिए इनको बोला गया एरो एलर्जन. एंड मोस्ट कॉमन एरो एलर्जन, दैट इज द पार्थिनियम, कैरेटवीड और कांग्रेसवीड. कैरेटवीड और कांग्रेसवीड अ मोस्ट कॉमन pollen grain which works as aeroallergen. इसी तरह से एक प्लांट होता है चिनोपोडियम. चिनोपोडियम बथुआ. बथुआ के जो पोलन है, अगर वो भी चले जाएं, तो कुछ इंडिविजुअल में एलर्जी कोज करते हैं. याद रखो भाई, एलर्जी सब में नहीं होती है. ये हार्मलेस केमिकल हैं, लेकिन बाई चांस क्या होता है कि जब ये किसी इंडिविजुअल की बॉडी में चले जाते हैं, तो वहां पर ये इम्यून सिस्टम को एलिसिट कर देते हैं, और उसी को हम बोल देते हैं एलर्जी. तो ये चिनोपोडियम. इसके बाद आया एमेरेंथस. एमेरेंथस ऑल्सो sorghum. And due to these aeroallergen, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अकर. और अगर ये परसिस्ट कर जाए ना बेटा, तो इससे ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है. तो ये एक तरह का डेंजरस एलर्जी फैक्टर होता है, एलर्जन होता है. इसी तरह से एक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हे फीवर. हे फीवर, हे फीवर भी एक तरह की एलर्जी, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ही है. एंड दिस हे फीवर, it is caused by pollens of ambrosia plant. सनफ्लावर फैमिली का प्लांट है बेटा ये, एम्ब्रोसिया आर्टिमिसिफोलिया. और ये जो होते हैं, इनके पोलन अगर चले जाएं बॉडी में, तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करते हैं. उसी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को बोलते हैं है फीवर. इसके बाद थर्ड थिंग इज पोलन टैबलेट एंड पोलन सिरप. अगर हम देखें तो पोलन्स, दे आर थॉट टू बी
न्यूट्रिएंट रिच। पॉलन ग्रेन को ऐसा माना जाता है कि ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, एंड एज दे आर थॉट टू बी न्यूट्रिएंट रिच, हाँ भाई एलर्जी कैसे होती है, क्यों होती है, किस एंटीबॉडी की वजह से होती है, वो सब आप डिजीज वाले पार्ट में पढ़ोगे। मुझे नहीं बताना आपको कि कौन सी एंटीबॉडी बन रही है और कौन सी एंटीबॉडी आपके एलर्जी को रोक रही है। मैंने तो ये बता दिया आपको कि ये बॉडी में चले गए तो कुछ इंडिविजुअल की बॉडी में ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे एलर्जी हो जाती है। ठीक है बेटा। हाँ इधर देखो बेटा, pollen grains, pollen grains are thought to be rich in nutrients, माना जाता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है कि इनमें न्यूट्रिएंट होता ही है, लेकिन माना जाता है और एनसीईआरटी ने कहा है दे आर न्यूट्रिएंट रिच, इसलिए हमने भी बोल दिया न्यूट्रिएंट रिच। एंड एज दे आर न्यूट्रिएंट रिच, so these pollen tablet and pollen syrup, they are used as a food supplement। याद रखो फूड नहीं है, ये पता पड़ेगी सिरप लेकर आए पोलन सिरप और सुबह पूरी एक साथ खाना खाकर आए हो, बिल्कुल खाकर आए सर, क्या खाकर आए हो कि सर पोलन सिरप पीकर आए। यहाँ भी कॉन्सेप्ट खराब है बेटा तेरे तो। मैं तो सोचता था बॉटनी खराब है, तेरी तो जूलॉजी भी खराब है। हाँ इधर देखो बेटा, न्यूट्रिएंट रिच है, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होंगे, एंड हाँ तो मेंटर हूं तो उससे क्या हुआ। इधर देखो बेटा, अब बातें नहीं, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होंगे, एंड दैट्स व्हाई pollen grain, pollen tablet and pollen syrup, they are used by the athlete to increase their stamina। ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रिएंट रिच है और न्यूट्रिएंट रिच होने की वजह से इनको एथलीट यूज करते हैं कि जिससे उनका जो स्टेमिना है वो बढ़ जाए। इसी तरह से दे आर ऑल्सो गिवन टू द रेस हॉर्स, जो घुड़दौड़ के घोड़े होते हैं ना बेटा, उनको भी पोलन टैबलेट और पोलन सिरप दिए जाते हैं। क्लियर है बात। सो पोलन टैबलेट एंड पोलन सिरप, pollen are nutrient rich and that's why they are used as a food supplement। Next thing, that is the pollen bank, and in pollen bank pollens are cryopreserved 8 minus 196 degree centigrade in liquid nitrogen। जैसे एनिमल के केस में अगर हम देखें तो एनिमल के केस में सीमन बैंक होता है, स्पर्म बैंक होते हैं, उसी तरह प्लांट के केस में पोलन बैंक बनाए गए हैं, और इन पोलन बैंक में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, these pollen grains are cryopreserved at the minus 196 degree centigrade in liquid nitrogen। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, ध्यान रखना ये चीज। तो pollens are cryopreserved at minus 196 degree centigrade in liquid nitrogen। Then pollen viability, यहां पर पहले मैं एनसीईआरटी वाले पॉइंट ले रहा हूं, फिर उसके बाद अपन दूसरे पॉइंट लेंगे। pollen viability that is highly variable means pollen viability can be for few minutes to the many month, and this pollen viability, this depends on moisture and temperature। Another thing, this also depends on genotype। याद रखना, ये जो होता है इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर अपन देखें कि एनवायरनमेंट में अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो पोलन वाइबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है। दूसरी तरफ कुछ प्लांट ऐसे हैं
कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी पॉलन वाइबिलिटी कुछ मिनट की है और कुछ ऐसे भी है जिनके कई महीनों तक है, तो वो ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर और ड्यू टू द जीनोटाइप. फॉर एग्जांपल, wheat and rice. In wheat and rice, pollen viability is up to 30 minutes. याद रखो यहां पर pollen viability का मतलब the cells which are present inside the pollen remain viable, और वो ड्यूरेशन जो होता है वो कहलाता है pollen viability. ठीक है भाई, pollen के अंदर सेल होते हैं और ये सेल कितने टाइम तक लिविंग रहते हैं उसी को हम बोलते हैं pollen viability. और जितना ड्यूरेशन है उतने टाइम में these pollen should reach to the stigma. व्हीट और राइस में पॉलन रिलीज होने के विद इन 30 मिनट स्टिग्मा पर पहुंचना जरूरी है. अगर ये स्टिग्मा पर 30 मिनट में नहीं पहुंचे तो ये वेस्ट हो जाएंगे, फिर तो वेस्ट हो जाएंगे ये. लेकिन व्हीट और राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. रीजन है कि व्हीट और राइस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, तो विद इन 30 मिनट काम हो जाता है. देन सोलेनेसी, रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी. अगर हम बात करें सोलेनेसी की, लेग्यूमिनोसी की और रोजेसी की, तो यहां पर पॉलन वाइबिलिटी दैट इज फॉर मैनी मंथ. ठीक है भाई, लेकिन एक चीज याद रखना, ये मैनी मंथ जो हमने लिखा है ये मोस्ट ऑप्टिमम कंडीशंस के लिए लिखा है. अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तो इनकी वाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो सकती है. ठीक है भाई, यहां तक बोलिए भाई. डिपेंड्स ऑन जीनोटाइप. अगर हम बात करें पोलन टेबलेट या पोलन सिरप यूज करने से क्या पोलन एलर्जी नहीं होता? हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है. एक्साइन हार्ड स्पोरोपोलेन इनके डिपोजिशन के कारण होती है बेटा. हाँ भाई, क्या था बेटा? डिपेंड्स ऑन जीनोटाइप. याद रखो अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में जो पोलन होंगे उनकी वाइबिलिटी अलग अलग होगी. जैसे व्हीट और राइस, इनकी वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट, ये जीनोटाइप डिपेंडेंट हो गया, इंटरनल फैक्टर हो गया, इनमें कई महीनों तक है. ठीक है बेटा, सो दैट इज द pollen viability. Then the longest pollen is present in जोस्टेरा. और जोस्टेरा की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये एक्वेटिक प्लांट है, इसको हम बोलते हैं सी ग्रास. एंड इन दिस ribbon like pollens are present. And a special thing regarding the Zostera pollen, that pollens are not surrounded by the sporopollenin. इनके पोलन के चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, तो क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन नहीं है बेटा इनके चारों तरफ. याद रखो बेटा, जोस्टेरा में और in most of the aquatic plant, sporopollenin is not present. Rather than sporopollenin, these pollens are surrounded by the mucilaginous cover. And this mucilaginous cover prevent the wetting of pollen grain. याद रखना, अगर pollen grain wet हो गया ना, it lose its viability very rapidly. याद रखना, जो मैंने यहां पर भी अगर आप देखो तो मॉइस्चर एक फैक्टर है अपना.
मॉइस्चर एक फैक्टर है, अगर एनवायरनमेंट में ज्यादा मॉइस्चर होगा ना तो पोलन वाइबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इन एक्वेटिक प्लांट्स म्यूसिलेजिनस कवर इज प्रेजेंट अराउंड द पोलन टू प्रिवेंट द वेटिंग ऑफ पोलन ग्रेन। देन largest pollen and largest pollen is present in the mirabilis. Then another thing, that is smallest pollen, and smallest pollen is present in Myosotis. Then in Cypressae family, याद रखो एक फैमिली है साइप्रेसी, साइप्रस आता है इसमें, और इन साइप्रेसी फैमिली 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस ओनली 1 फंक्शनल माइक्रोस्पोर। यहां पर क्या होता है बेटा, here what happen, that microspore mother cell meiotically divide, और जब ये मियोसिस करेगा तो यहां बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, बट आउट ऑफ 4 माइक्रोस्पोर degeneration of 3 microspore, and this degeneration of 3 microspore, it leads to only 1 functional microspore। और ये जो एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर बना, इससे आगे 1 पोलन ग्रेन बनेगा। मतलब यहां पर एक मियोसिस से एक ही पोलन ग्रेन बनेगा, एक मियोसिस से एक ही पोलन ग्रेन बनेगा। नॉर्मल केस में एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। क्लियर है बात यहां तक बेटा? ये वाला पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद यहां पर हमने अपनी मॉड्यूल की एक छोटी सी बात छोड़ी थी, अब हम उसको लेते हैं, एंड दैट इज द टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड और द पोलन टेट्राड। ठीक है भाई, एनसीईआरटी से बाहर है हम। माइक्रोस्पोर टेट्राड और द पोलन टेट्राड, फर्स्ट टाइप that 4 microspore और 4 pollen grain are arranged in tetrahedral pattern। 3 आपको दिखाई दे रहे हैं और एक पीछे की तरफ है, तो इसको बोलेंगे हम tetrahedral tetrad, and this is the most common tetrad। यूजुअली डाइकोट प्लांट में होता है, ये जो कंडीशन आता है यूजुअली प्रेजेंट इन द डाइकोट। सेकंड, 4 माइक्रोस्पोर, दे आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, और साइड बाय साइड अरेंजमेंट इसको हम बोल देंगे आइसो बाइलेटरल। एंड आइसो बाइलेटरल टेट्राड, isobilateral tetrad is commonly present in the monocot। तीसरा, the 4 microspore, they are present in 2 group, दो के 2 पेयर में होते हैं, and these pairs are perpendicular to each other, so a cross like structure is formed। और जब क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर के लिए टर्म आता है डेक्यूसेट। ठीक है बेटा,
दो जो होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल होंगे और दो जो होंगे वो ट्रांसवर्स होंगे। तो उससे क्या होगा, एक एक्स लाइक और क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और उसी के लिए टर्म आता है डेक्यूसेट। टू आर हॉरिजॉन्टल एंड टू आर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन पेयर की फॉर्म में नहीं आए, तो इसको हम बोलेंगे टी शेप्ड। और कभी कभी क्या होता है कि चारों के चारों एक के ऊपर एक आ जाते हैं, और जब एक के ऊपर एक आ जाएंगे देन इट इज नॉन एज लीनियर टेट्राड। ठीक है बेटा, यूजुअली ये देखा गया है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में इनमें से कोई एक ही होगा, लेकिन एक प्लांट होता है अरिस्टोलोचिया एलिगेंस। इन अरिस्टोलोचिया एलिगेंस all 5 type of tetrads are present. अरिस्टोलोचिया एलिगेंस में पांचों टाइप के पोलन टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर की। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए बेटा। हाँ बेटा जी। साइप्रस रोटंडस इज द साइप्रेसी फैमिली का एग्जांपल है बेटा, हेज ग्रास। हाँ बेटा, अब हम बात करेंगे डेहिसेंस ऑफ एंथर की। इधर देखना बेटा, अगर हम डेहिसेंस ऑफ एंथर की बात करें बेटा, बातें नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें। और ये तो आपने इतने दिनों में देख ही लिया होगा कि जो क्वेश्चन आप पूछते हो उसका आंसर मैं देता ही हूँ। कभी मैं ये नहीं कहता कि तुझे इतना सा भी नहीं आता क्या, क्योंकि भाई नहीं आता इसीलिए तो यहाँ हूं। सीधा सिंपल सी बात है। और नहीं आता इसीलिए पूछ रहे हो आप, इसलिए तो पूछ नहीं रहे हो कि सर की नॉलेज टेस्ट कर लें। देखो सीधी सी बात है, कई बार होता है ऐसा, ठीक है ना, लेकिन अब इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि ये सारी चीजें तो खत्म हो चुकी है। ठीक है ना भाई, तो अगर कोई भी बात हो पूछ लिया करो। चलो अपन देखते हैं। अब पहली बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, dehiscence of anther occurs due to endothecium, occurs with the help of epidermis, endothecium and middle layer. Another thing, it occurs at stomium, और स्टोमियम के लिए एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है लाइन ऑफ डेहिसेंस। एनसीईआरटी ने इसी के लिए टर्म यूज किया है लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है बेटा, अब अगर हम यहां पर देखें तो दिस dehiscence usually occurs in dry environment. Another thing, at the time of dehiscence, only epidermis and endothecium wall layer is present. यहां अगर हम देखें तो ये दिस इज वन एंथर। ठीक है बेटा, यहां पर था एपिडर्मिस, इसके अंदर की तरफ था एंडोथीशियम,
और इसके अंदर थे मिडिल लेयर एंड टेपेटम। ठीक है बेटा। और यहां पर अगर हम देखें, ये हो गया मिडिल लेयर, इसी तरह से यहां पर भी ये हो गया मिडिल लेयर। इसके अंदर जो लेयर था वो था टेपेटम, and inside this microspore mother cell which form the pollen grain। अब यहां पर pollen grain का फॉर्मेशन हो गया। जब pollen grain का फॉर्मेशन होता है, एट दैट टाइम मिडिल लेयर डिजनरेट ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय द टेपेटम। टेपेटम मिडिल लेयर से फूड एब्जॉर्व कर लेता है, और जब टेपेटम मिडिल लेयर से फूड एब्जॉर्व कर लेता है तो मिडिल लेयर डिजनरेट कर जाता है, एंड दिस टेपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, और उसकी वजह से टेपेटम डिजनरेट कर जाता है। अब यहां पर एक और बात क्या होती है कि ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, ये दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई, पोलन बन गया, तो अब इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, पोलन सेक। पोलन बन गया तो हमने क्या बोल दिया, पोलन सेक। एंड इन बिटवीन दीज माइक्रोस्पोरेंजिया स्टेराइल सेल इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा। यहां अगर हम देखें तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, एक एंथरलोप का, दो माइक्रोस्पोरेंजिया, अभी चारों लेयर है। अब क्या होगा, व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर, मिडिल लेयर एंड टेपेटम डीजनरेट, और इनके अंदर जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन यहां रिलीज हो गए। साइमल्टेनियसली व्हाट हैपन, द स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया that also degenerate, the sterile cells or sterile layer which are present in between two microsporangia of one antherlobe that also degenerate। और जब वो डिजनरेट हो गया तो अब बताओ कितने पोलन सेक दिखाई दे रहे हैं, बोलो भाई कितने पोलन सेक, ये पोलन ग्रेन है, बोलो कितने पोलन सेक, एक। जीरो कैसे बेटा, एक तो दिख रहा है भाई, एक means at the time of dehiscence each anther contains only and only two pollen sac anther। एक तो ये हो गया, इसी तरफ भी ऐसा का ऐसा इधर होगा। बोलो वॉल लेयर कितनी, वॉल लेयर कौन कौन सी, एपिडर्मिस, और at the time of dehiscence only epidermis and endothelium wall layer is present because middle layer and tapetum is already degenerate। Another thing, only two pollen sac are present in one anther। One pollen sac in each antherlobe। क्लियर। अब इधर देखो, ये कंडीशन आ गया, हमने यहां पर लिखा है इट अकर्स इन ड्राई एनवायरमेंट। व्हेन एनवायरमेंट इज ड्राई एंडोथीशियम वॉल लेयर लूज वाटर। एंडोथीशियम के वॉल जो है उससे वाटर लॉस होगा, और जब एंडोथीशियम लेयर से वाटर लॉस होगा तो सेल का साइज डिक्रीज होगा। कहां से, अंदर से, बाहर से, या साइड से? हाँ, अंदर से क्यों नहीं हो सकता, थिक वॉल, अल्फा सेल्यूलोज, फाइब्रस थिकनिंग। और साइड से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कैलोस बैंड है। ठीक है बेटा, तो साइड वाली वॉल, ये वाली वॉल
साइज में डिक्रीज नहीं हो सकती, ये वाली वॉल साइज में डिक्रीज नहीं हो सकती, डिक्रीज कौन सी होगी, केवल ये वॉल, बोलो। और जब ये वॉल डिक्रीज होगी, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्केव शेप स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। कॉन्केव हो गया, बोलो। और जब ये कॉन्केव शेप स्ट्रक्चर बनेगा, इट पुट प्रेशर ऑन द एंथर वॉल, अब पुलिंग प्रेशर इज क्रिएटेड, ये ऊपर वाला पूरा का पूरा वॉल साइज में डिक्रीज कर रहा है, नीचे का वाला पूरा का पूरा साइज में डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एक पुलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, और यह पुलिंग प्रेशर लगातार इंक्रीज हो रहा है। और जब पुलिंग प्रेशर लगातार इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, इट लीड्स टू द रप्चरिंग ऑफ एंथर वॉल। कहां से, बोलो, स्टोमियम से, क्योंकि स्टोमियम पर fibrous thickening and callus is not present, and usually in anther it occurs in longitudinal way। यहां अगर हम देखें, ये हमारा एंथर कल वाला, ठीक है ना बेटा, इस तरह से अपन ने काटा था, यहां पर ये लाइन ऑफ डेहिसेंस, और इस पूरे के पूरे में, पूरे के पूरे में यहां से एंथर का डेहिसेंस होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो है पैट, ये इस तरह है बेटा, इस तरह से ही है, ये वाला पार्ट ये वाला हो गया, इधर वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है बेटा। तो स्टोमियम जो होगा, स्टोमियम से एंथर का डेहिसेंस होगा, एंड दिस एंथर डेहिसेंस यूजुअली अकर इन लॉन्गिट्यूडनल वे। कैप्सुला एंजियोस्पर्म प्लांट है, टिपिकल एंजियोस्पर्म है, तो कैप्सुला में भी डेहिसेंस ऑफ एंथर इट अकर्स इन लॉन्गिट्यूडनल वे। सो ड्यू टू द dry environment, water loss occur from endothecium cell, it leads to development of pulling pressure and anther dehiscence occur. In angiosperm, usually anther dehiscence occurs longitudinally. बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एक कपड़ा है, उस कपड़े को आप अपनी तरफ खींच रहे हो, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, ठीक है, एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो गया, और ये पुलिंग फोर्स जो है उसको हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से बढ़ा रहे हो, मैं अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं, क्या होगा, कपड़ा फट जाएगा। कहां से फटेगा, बीच में से नहीं फटेगा, कपड़ा वहां से फटेगा जहां से कमजोर होगा। तो जब यहां पर पुलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ तो एंथर डेहिसेंस हुआ, और एंथर डेहिसेंस कहां से हुआ, जहां से एंथर वॉल वीक थी, और एंथर वॉल वीक कहां थी, स्टोमियम रीजन पर, तो वहां से एंथर डेहिसेंस होगा। इज इट क्लियर, बोलो बेटा। सो दैट इज द डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसके बाद आता है अपना डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट। अभी तक अपन ने माइक्रोस्पोर बनाया है, अभी हमने गैमिट नहीं बनाया है, ठीक है बेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में। मॉर्फोलॉजी का मॉड्यूल लाए हो, हाँ करा है,
आप कर लेना, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे फिर पूछ लेना, ठीक है? नहीं तो फिर मंडे को या कभी भी जब भी अपने के पास टाइम होगा तब अपन सोल्व कर लेंगे। क्लियर है यहां तक बेटा? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ, नॉर्मल प्लांट्स में ड्राई एनवायरनमेंट में हीट एडिशंस होता है बेटा। हम नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात कर रहे हैं, हम एक्सेप्शनल केस या एबनॉर्मल प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। कॉनकेव जो होता है वॉल का शेप बन जाता है बेटा, मेनली एंडोथीशियम का। स्टोमियम इज द पोजीशन वेयर डेhiscence अकर। हाँ बेटा, प्रतिज्ञा के लिए खड़े होंगे। प्रतिज्ञा स्टार्ट करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि